Hello friends, we are going to explain the chapter number 7 of English literature, and the name of the chapter is Northeast India. So let's have the explanation of the chapter. Now let's see about Mizoram. Mizoram, nestled in the mountains of northeast India, is the tiny state of Mizoram. So, we will explain in both Hindi and English. Nestled in means surrounded in mountains of northeast India is the tiny state of Mizoram. It is scenic hills and mountain serene lakes. Peaceful, serene means peaceful, deep valleys and rippling streams. So how is the scene? You can see in your book that how the beautiful the scenes are there. Tumbling down the cliffs to from spectacular waterfalls. How the water falls from the mountains, hills and reaches on the plain, and in which way does it flow? Our naturalist delight. And who likes this? The lover of nature, who like this kind of scenes. So in which way it is surrounded with the mountains. It is surrounded with mountains, with greenery, and the rivers are flowing. It is forest, and thick bamboo groves are home to variety of wildlife. And it is forest and thick bamboo groves, and it is variety. It is a wild. It is a variety of wildlife, and many kinds of animals are found here. Bamboos are also found, but it is a home of variety of wild animals. तो ये मिजोरम है, वो ऐसी जगह पर लोकेटेड है, वो कुदरती सौंदर्य से भरा हुआ है. नदियाँ खड़खड़ बहती रहती हैं, बम्बूज ज़्यादा होते हैं और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसकी बहुत सारी वैरायटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी. और कैसे लोगों को ये पसंद आएगा? जो नेचर को लव करते हैं. So this is Mizoram. Tourists are attracted every now and then by the range of wildlife found here, especially the birds. And tourists used to visit the place. Why? Because there is a range of wildlife found here, and especially the birds. The birds are found in the thousands of numbers. Many different kinds of birds are found. That's the people who are naturalists used to come there. The local people of Mizoram are called Mijos, like Gujarati. We are called Gujarati. We live in Gujarat, so we are called Gujarati. The same way, the Mizoram people are called Mijos, warm, generous, and welcoming. And they are warm, generous, and welcoming. तो मिजोरम के लोग हैं, उसको हम मिजोस कहते हैं. वो वार्म होते हैं, उदार होते हैं और वेलकमिंग, स्वागत करने वाले होते हैं. द मिजोस फॉलो अ कोड ऑफ गुड वैल्यूज कॉल्ड तलावम गेना. तो दे फॉलो द गुड वैल्यूज कॉल्ड तलावम गेना. Life in Mizoram continues to be based on traditional communities' life. So they live yet they are living a traditional life. There is no much change you can see there. The life in Mizoram continues to be based on traditional community life. A highlight of this lifestyle is the community dance held here. And main thing of the highlight of the area is that the dance style, the community dance, the traditional community life continues
to be based on the traditional community life. A highlight of this lifestyle is community dances held during the harvest festivals. And it is well known, it is common for us that we all know that the festivals, most of the festivals are celebrated on the day of harvest, because in those days they were doing work with a celebration, and same is continue for the many years. So जब हार्वेस्ट का समय होता है तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. एंड इन मिज़ोरम द टर्म कुट मीन्स फेस्टिवल, और जो मिज़ोरम में कुट का मतलब होता है फेस्टिवल. नाउ लेट्स सी द मीनिंग्स. नेसल, सराउंडेड बाय, सेरेन, पीसफुल, नेचुरलिस्ट, अ स्टूडेंट and lover of nature, traditional, a part of those beliefs, customs or ways of life that have not changed for a long time. That is traditional, सालों से चली आ रही प्रथा और अभी तक चेंज नहीं हुई है. Lifestyle, the way in which the person or group of people lives. Lifestyle मतलब जो एक ग्रुप है वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है. Now let's see. तो बेटा कुट का मीन होता है फेस्टिवल, and most of the festivals are related to agriculture, और most of जो फेस्टिवल हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. नाउ कुट मतलब फेस्टिवल, तो यहाँ पे चपकर is a festival that is celebrated during the period when the bamboos and trees in the forest are cut and burnt. तो ये जो चपकर हैं, जो चपकर है फेस्टिवल, कुट का मतलब फेस्टिवल, वो कब सेलिब्रेट होता है? सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बम्बूज एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न. तो बम्बू है फॉरेस्ट में, उसको जब काटा जाता है, वो उसको बर्न किया जाता है, तब ये सेलिब्रेट करते हैं. इसलिए कुट मतलब फेस्टिवल एंड चपकुट. सो ये फेस्टिवल में जब बम्बू को काटा जाता है, जलाया जाता है, तब ये फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं. और देखो डांस कैसे करते हैं ट्रेडिशनल, वैसे यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में. दिस इज डन टू क्लियर द लैंड फॉर जूमिंग और फार्मिंग. जूम कल्टीवेशन वी हैव स्टडीड इन एसएस. जूम कल्टीवेशन मतलब एक जगह जो ट्रीज होते हैं उसको काट के 1-2 साल वहाँ पे खेती करते, बाद में आगे बढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन. जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, ऐसे ही जो बर्न एंड स्लैश हम जिसे कहते हैं, बर्न एंड स्लैश. तो ये जो फार्मिंग है उसको जूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. तो दैट इज को चपकर कुट. कुट मतलब फेस्टिवल, तब फेस्टिवल मनाया जाता है. द पीपल ऑफ मिजोरम also have many unique dance and songs. जैसे हमारे भी यहाँ पे डांस सॉन्ग्स है, तो अलग अलग विस्तार में, अलग अलग स्टेट में हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वेल नोन डांस है. जैसे हमारा गरबा है, पंजाब का भांगड़ा है, वैसे द पीपल ऑफ मिजोरम ऑल्सो हैव मैनी यूनिक डांसेस एंड सॉन्ग्स. तो मिजोरम है, उसके भी यूनिक डांस और सॉन्ग्स है. वन ऑफ द एल्डेस्ट डांस ऑफ मिजोरम, ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो कोई डांस है मिजोरम का इज चिरो, विच इज़ द 100 of years old. तो बेटा वो सालों पुराना है चेराओ. तो ये मिजोरम का डांस है. दिस डांस इज परफॉर्म्ड विथ बम्बू पोल्स, जो हमने ये पिक्चर दिखाया वैसे, और बम्बू पोल्स से वो खेला जाता है, मतलब डांस किया जाता है, वो डांस करते हैं. परफॉर्मर्स सीट फेस टू फेस, जो परफॉर्मर है फेस टू फेस बैठते हैं ऑन द ग्राउंड. देखो ये लास्ट छेड़े पे बैठे हैं, फेस टू फेस ऑन ग्राउंड, एंड टैप लॉन्ग पेयर्स ऑफ बम्बू पोल्स, ओपन एंड क्लोज इट इन टाइम विथ रिदमिक बीट्स. जो बीट होती हैं, जो आवाज़ उस रिदम के साथ उसको बंद करते, खोलते, बंद करते, ओपन करते, क्लोज करते, ओपन करते. यंग वुमन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स. बाद में जो यंग वुमन है जो ट्रेडिशनल क्लॉथ में होती हैं, डांस इन एंड आउट बिटवीन द बम्बू.
जैसे ये लकड़ी जो दिखाई गई है दो, वो ऐसे बंद करती हैं, तो पहले इन और आउट जो ट्रेडिशनल ड्रेस में जो लड़कियां हैं वो करती हैं. सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट डांस ऑफ मिज़ोरम and very interesting and it requires your skills. बेटा इसमें बहुत स्किल्स की और प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है. ये बहुत ही अच्छा चार्मिंग डांस है. देन द मिजोज हैव ऑल्सो हैव रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. यहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है. द पेकाओ, a bamboo basket often used to carry cotton firewood, or firewood is good example of the artistic skill of the Mizo people. हम बेटा बम्बू के बास्केट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. तो मिज़ो पीपल है वो आर्ट और कला में भी माहिर है. मिज़ोज ऑल्सो हैव रिच हेरिटेज. बेटा उसका जो वारसा है, जो हेरिटेज है वो बहुत ही समृद्ध है. आर्ट और क्राफ्ट का जो उसका जो वारसा है वो बहुत ही समृद्ध है. द पेकाउन अ बम्बू बास्केट, बम्बू का जो बास्केट बनाते हैं हमने देखे हैं, और आजकल अमीर लोग हैं बम्बू के चेस और ये सब अपने घर में रखते हैं. ऑफन यूज टू कैरी कॉटन और फायरवुड. तो बड़े बड़े बास्केट हैं, उसमें जो लकड़े लाते हैं या कॉटन लाते हैं उसमें भर के. इट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द मिज़ो पीपल. और एक बहुत ही अच्छा और रियली एडमायरेबल जो एक एग्जाम्पल है उसके स्किल का, जो मिज़ो पीपल है वो आर्ट और क्राफ्ट में अपना हुनर दिखाते हैं. तो जो मिज़ोरम है वो बहुत ही अच्छा, और जो नेचुरलिस्ट है उसको पसंद आए वैसा उसकी जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है. और वहाँ की जो कलाकृति है, वहाँ का जो डांस है, वहाँ पे जो फेस्टिवल्स है वो भी बहुत ही देखने लायक है, एंजॉय करने लायक है. अब आते हैं आसाम. सो आसाम इज़ अ लैंड ऑफ ब्लू हिल्स, ग्रीन प्लेन्स एंड मेनी रिवर्स. तो बेटा जो आसाम है वो ब्लू हिल्स का लस ग्रीन्स एंड मेनी रिवर्स. तो नदी होगी तो ग्रीनरी होगी. तो ये बहुत ही देखने लायक है. आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा पिक्चर है. यहाँ पे वैली कितनी अच्छी है, जो नदी कैसे जा रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो स्टेट विथ अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर. और यहाँ का जो कल्चर है विविधता से भरा हुआ है और रिच है, समृद्ध. जिसका जो कल्चर है, जिसकी संस्कृति विविधता से भरी और समृद्ध है. एज पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग धर्म के, अलग अलग फेथ के लोग रहते हैं. रेसिस, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं. हैव लिव्ड टुगेदर फॉर हियर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. सालों से, हजारों सालों से, कितने सालों से अलग अलग जाति के, नाती के, धर्म के, बिलीफ के, फेथ के लोग यहाँ पे रहते हैं. तो जो उसका जो स्टेट है, उसका जो कल्चर है वो डाइवर्स है. जैसे गुजरात में भी देखो अलग अलग फेथ के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं. तो डाइवर्सिटी, विविधता. तो यहाँ पे भी फिर भी देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यहाँ पे भी जैसे भारत में, तो आसाम में भारत का, तो यहाँ पे भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता यहाँ पे दिखाई देती है. एंड शिवालिक हिल लाई अलोंग द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ आसाम. तो शिवालिक जो हिल है वो कहाँ पे आया हुआ? लाई अलोंग द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ आसाम. नंबरस स्नो फेड रिवर्स. जो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बारिश से नहीं, लेकिन स्नो जब पिघलता है तो उससे फीड होती है और इसलिए सतत बहते रहते हैं. द न्यूमरस स्नो फेड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द शिवालिक एंड फीड द emerald green paddy fields and tea estate. The state is known for. और जो ये पानी है वो यहाँ जो आसाम है वो चाय के लिए प्रसिद्ध हैं. तो चाय के जो बगीचे होते हैं, द टी जो उगाते हैं उसको वो फीड करते हैं. वो पानी बहुत ही उससे
अनुकूल आता है, उसको मदद रूप बनता है। तो इसलिए जो स्लोप्स हैं, जो ढलान हैं, एंड फीड द इमेरल्ड ग्रीन पैडी फील्ड्स एंड टी स्टेट द स्टेट इज़ नोन फॉर। और ये जो आसाम है वो टी के लिए, और टी मतलब चाय से जाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा, नेचर के साथ पानी जो पिघल के नीचे आता है शिवालिक से और बाकी बहते बहते स्लोप्स में, और वहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं और जहाँ पे फार्म होते हैं वहाँ पे वो पानी का यूज़ होता है। देयर आर मैनी फेस्टिवल्स। अब यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो देयर आर मैनी फेस्टिवल्स दैट आर यूनिक टू द रीजन, और ये विस्तार के लिए यूनिक है। बिहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम। वी ऑल नो अबाउट बिहू, जो एक फेमस फेस्टिवल है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो बिहू है वो 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एंड बोहग बिहू, जो उसका पहला जो है बोहग बिहू, पहले मीनिंग देख लेते हैं। लस area has a lot of green plants, grass and trees, diverse, including many different types of people or things. So the first Bohag Bihu, first one is the Bohag Bihu, celebrate the hope for a good harvest. तो जो सेलिब्रेट करते थे ये होप रखते कुछ अच्छा हार्वेस्ट हो, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन द फार्मर स्टार्ट ग्रोइंग, and on the time of growing they celebrate the festival. And then Kati Bihu, which marks the cutting and binding of crops, and second one is Kati Bihu, which means the cutting and binding of the crops, and Mag Bihu, third, which makes the season of harvesting, and that when they harvest. So first one Bahag Bihu, that celebrates the hope of good harvest at the time of starting the sowing. Then Kati Bihu marks the cutting and binding of crops, and the Bihu which makes the season of harvesting. Now Assamese are also known for their excellent craftsmanship. तो हर एक स्टेट है, हर एक राज्य है, उसकी कलाकृति होती है, उसका नृत्य होता है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी अलग भाषा होती है, उसमें विविधता होती है, उसकी लाइफस्टाइल होती है, उसकी वाइल्ड लाइफ होती है, उससे सोशल रिलेशंस होते हैं. सो दिस इज द आसामीज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप. कैन एंड बम्बूज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ इन आसाम. तो जो कैन है और बाम्बूज है वो जो आसामीज है उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ग्रोन इन एब्यूडेंस, पुष्कल प्रमाण में, ज़्यादा मात्रा में. ग्रोन इन एब्यूडेंस, कैन एंड बम्बू आर यूज टू मेक मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स इन आसामीज होम. हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा कैन और बम्बूस में से बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे वो पुष्कल प्रमाण में मिलता है. और इन कंपेरिजन ऑफ मेटल्स इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर life, our body, very natural. That's why it doesn't harm to anybody. If we make anything article from them, it is very very good for us. The uses of for can and bamboos range from household items. It starts from the household items such as basket to making of musical instrument. तो बास्केट से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स. और घर बनाने में भी बम्बू बनाते हैं. हम यहाँ पर भी झोपड़ी बनाते थे तो बम्बू का यूज़ करते थे. पहले घर बनाने में ऐसे जो घर बनाते थे तब भी हम बम्बू का यूज़ करते थे. बाद में उसमें जो हम नड़िए हैं वो लगाते थे. सो हम घर बनाने में भी यूज़ करते हैं. द आसामीज पीपल आर ऑल्सो नॉन फॉर द मेकिंग ब्यूटीफुल कलर मास्क. और आसामीज हैं
वो कलरफुल मास्क बनाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। दिस मास्क आर मेड विथ टेराकोटा मेटल बम्बू। तो उसमें जो मास्क बनाने में टेराकोटा मेटल और बम्बू का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। एंड वो ट्रेडिशनली यूज टू यूज इन फोक थिएटर, जो उसके फोक लॉक थिएटर है। लॉक फोक मतलब फोक डांस होता है ना, लॉक नृत्य। टुडे दे आर ऑल्सो सोल्ड इन टूरिस्ट एज सोर्स ऑफ इनकम। और आज है वो जो आर्टिकल्स हैं, जो ट्रेडिशनल जो थीम्स बनाते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वो आज भी बेचते हैं और उसकी डिमांड है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो सोल्ड टू टूरिस्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। और ये उसकी सोर्स है, और उसकी इनकम की सोर्स है, वहाँ से जो इनकम और उसका जो लाइवलीहुड, उसका जीवन निर्वाह चल सकता है। Now let's see Nagaland. Nagaland is a largely mountainous state. तो बेटा नागालैंड है वो माउंटेन स्टेट है, which is famous for its tropical and subtropical evergreen forest. So it is well known for evergreen forest, means they don't become bare during autumn. बेटा ऑटम आती है तब भी वो उसके जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन रहते हैं। It's tropical and subtropical evergreen forest. 20% of the state is covered with wonderful forest. तो बेटा 20% है जो स्टेट है वो covered with wooded forest and there is a plentiful fauna and flora found. और यहाँ पे जो वृक्ष हैं, जो फल फलादी हैं, जो यहाँ पे प्लांट है, वो पुष्कल मात्रा में एब्यूडेंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स। जो हॉर्नबिल्स है उसका ये घर है। तो नागालैंड है, इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर नेचर। इट इज़ वंडरफुल टू सी बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हियर एंड वंडरफुल एंड 20% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद वुडेड फॉरेस्ट। द पीपल ऑफ नागालैंड बिलोंग टू 16 ट्राइब्स। सो यहाँ पे 16 प्रकार के ट्राइब्स रहते हैं, ईच विथ अ लैंग्वेज, और सबकी अलग अलग भाषा होती है। दैट इज़ एक्सक्लूसिव टू द ट्राइब। द लैंग्वेजेस आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। और उसकी जो लैंग्वेज होती है डिस्टिंक्ट होती है, यूनिक होती है। जैसे हमने बाहुबली में देखा है, जो वो विलन है, वाह क्या बोलता है पता नहीं चलता है। तो डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, वहाँ की जो लैंग्वेज है और डिस्टिंक्ट अलग और यूनिक होती हैं। टू सच एन एक्सटेंट यू कैन सी हियर द पिक्चर, हाउ दे डांस, हाउ दे जंप, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल देयर ओन वेज विद देयर ओवर ऑर्नामेंट्स दे हैव मेड फ्रॉम द नेचर। नाउ एब्यूडेंस मीन्स मोर देन इनफ ऑफ समथिंग, अ सोर्स ऑफ इनकम or way to earn money, how to earn money. And green forest, a forest with trees that stay green throughout the year, evergreen forest, exclusive, limited to only one person or group of people. Now let's see the communication between the tribes can sometimes be difficult, क्योंकि उसकी अलग भाषा है, तो अब उसके बात करोगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा। टुडे हाउ इंग्लिश इज ऑल्सो कॉमन स्पोकन अक्रॉस द स्टेट। लेकिन आजकल जो इंग्लिश है वो कॉमन है, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो, वरना वो अपनी डिस्टिंक्ट यूनिक लैंग्वेज में बात करते हो, आप समझ नहीं पाओगे। अगर हिंदी गुजराती बोलोगे तो थोड़ा बहुत पता चल सकता है, क्योंकि उसमें वर्ड सेम आते हैं। शायद उर्दू बोलोगे, गुजराती बोलोगे, हिंदी बोलोगे, संस्कृत बोलोगे या मराठी बोलोगे, लेकिन ये यूनिक उसकी भाषा है। वो पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत वो इंग्लिश जान सकते हैं। नागालैंड इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो जैसे दूसरे स्टेट बताएं, मिज़ोरम और आसाम, वैसे नागालैंड है, उसके भी फेस्टिवल्स हैं। मोस्ट ऑफ दिस फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड एग्रीकल्चर। देखो हमने नोटिस किया है जितने भी फेस्टिवल तीनों स्टेट में आए हैं वो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई भी आता है एग्रीकल्चर आता है।
Around 85% of the population of Nagaland is directly dependent on agriculture. जैसे हम भारत, हमारा जो देश है, जो कृषि प्रधान देश है, वैसे जो नागालैंड में 85% लोग हैं वो कृषि पे डिपेंड करते हैं, खेती पे डिपेंड करते हैं. The people live in villages that are built high up in mountains or on slopes overlooking Warren's Valley. Warren's Valley मतलब covered with healthy green plants और grass. तो बेटा जो लोग जो यहाँ पे रहते हैं, बिल्ट अप द विलेज, जो विलेज है उसकी इर्द गिर्द भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़ा बड़ा ग्रास होता है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो उससे वो कवर्ड है. द पीपल लिव इन विलेजेस दैट आर बिल्ट हाई अप इन द माउंटेन्स और ऑन स्लोप्स, माउंटेन या स्लोप से बनाते हैं, ओवर लुकिंग वेडेंट वैलीज, वहाँ से आप पुष्कल प्रमाण में आप ट्रीज देख सकते हैं और पूरा है वो उससे कवर होता है. द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल हॉस्टेड इन नागालैंड. जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है नागालैंड में, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 December एट द नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा नियर कोसीमा. तो बेटा वो लगातार 1 to 10 December तक उसको सेलिब्रेट किया जाता है. सो इट इज सेलिब्रेट एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 December एट द नागा हेरिटेज. जो नागा हेरिटेज है वहाँ पे विलेज ऑफ कासीमा नियर कोसीमा, जो कासीमा है विलेज कोसीमा का, वहाँ पे नागा हेरिटेज में ये 1 to 10 December तक सेलिब्रेट किया जाता है. द हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन 2000 एज अ मेन इवेंट टू प्रमोट टूरिज़्म. और 2000 में ये चालू किया था कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए तो यहाँ के लोग हैं उसको इनकम का सोर्स मिल जाए और लोगों उसके बारे में जाने और उसकी ब्यूटी को देख के खुद एक्सटेसिव फील करें और नेचुरलिस्ट है वो नेचर को एंजॉय कर पाए और जो यहाँ के लोग हैं उसको अपनी रोजी रोटी मिल जाए. सो इन 2000 एज अ मेन इवेंट टू प्रमोट द टूरिज़्म इन द स्टेट एंड टू ब्रिंग ऑल द ट्राइब्स टुगेदर अंडर वन रूफ. और जितने भी ट्राइबल अलग अलग प्रकार के जो ट्राइबल्स हैं वो सबको एक रूफ के नीचे लाके एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने और यूनिटी बने. इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 16 ट्राइब्स ऑफ डिफरेंट 16 टाइप्स के जो ट्राइब्स रहते हैं वो यहाँ पे एक छत पे मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की कला सीखेंगे. इसलिए ये आयोजित किया गया और उसको इनकम मिले, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और उसकी रोजी रोटी मिलती रहे. इसलिए नाउ द फेस्टिवल ड्रोज टूरिस्ट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. और भारत में से और पूरी दुनिया में से अब लोग अट्रैक्ट होके वहाँ पे आते हैं. द फेस्टिवल सर्व्स एज अ विंडो इनटू नागालैंड, a way to experience the way of life and traditions of this state. So तो यहाँ पे अब जो लोग हैं, द फेस्टिवल सर्व्स एज अ विंडो इनटू नागालैंड. और वहाँ पे जाओगे तो ये विंडो मतलब नागालैंड कैसा है उसका आपको एक्सपीरियंस करवाता है और आप उस लोगों के बारे में जान सकते हो. और ये तीनों स्टेट है जिसकी हमने चर्चा की वो उसमें हमने कॉमन देखा वो था, वो जो कॉमन हमने देखा वो जो उसके फेस्टिवल्स थे और फेस्टिवल्स थे वो इर्द गिर्द जो एग्रीकल्चर है उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं. और उसकी जो कलाकृति है वो भी नेचर में से, वो भी बम्बू या कैन ऐसे में से बनाए हैं. और उसके जो ट्रेडिशनल डांस है वो यूनिक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो यूनिक है, उसकी लाइफस्टाइल है वो यूनिक है. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द चैप्टर. वी हैव एक्सप्लेन वेरी स्मॉल चैप्टर. इट इज़ नॉट टू बी एक्सप्लेन टू मोर बिकॉज इट इज़ इंफॉर्मेटिव, इट्स नॉट इमेजिनेटिव. यहाँ पे इमेजिनेशन कुछ नहीं है, इट इज़ इंफॉर्मेटिव. आपको इंफॉर्मेशन कि हमारे स्टेट है वो कैसे हैं और
वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं और कैसे अपना विकास कर रहे हैं, और जो पहले कुछ कोई भाषा नहीं जानते थे वो भी आज भाषा जानने लगते हैं. सो आई होप एंड ट्रस्ट वी हैव एक्सप्लेन द चैप्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उसमें मिजोरम, आसाम और नागालैंड, ये तीनों के बारे में हमने जाना. और इट्स अ वंडरफुल experience to read the chapter, because at times we feel that we are there, because this is only information. If it is a imagination, it is a full of imagination, then we can imagine that how the culture will be there, because trees have covered the houses, covered the villages, and everywhere greenery is found, and tropical evergreen forests are also found there. So how it would be, because we have visited Gir, it's well known for Gujarat, yet it is not so attractive during the autumn. But if you visit Nagaland, then it will attract you, as the forests are evergreen forests. What do you mean by evergreen forest? They don't leave their their leaves, they don't shed their leaves on the same time, and that's why they remain evergreen. So we have seen all three, Mizoram, Assam and Nagaland, their dance, their culture, their art, their craftsmanship, and the people, how they live, and the festivals they celebrate, and on which day or on which season or they celebrate their festivals. And we come to know that most of their celebrations are celebrated during the harvesting time. So it's wonderful to see all these things. I hope and trust you have got this one, and if you have not got, try to read again, and if you are not getting, do call me. I am willing to explain you once again. Okay, so means on WhatsApp or on phone I can. So it's wonderful to teach you, and I hope and trust you will do the same. Now let's end here, then we will move to the question answer. This is the first part of explanation. Thank you very much.